Electoral bonds are unconstitutional, claimed by Supreme Court. Lot rankings are funding political parties. Democracy is on sale. The greatest scam in the Indian history. The electoral bonds and party fundings. Hey everyone, welcome to my YouTube channel Diplodec. This is Harik Kapoor from class 10 and this is my very first video on my YouTube channel which is on a trending topic, that is electoral bonds. So today I'm going to explain you about this entire thing in a very simplified language. So let's begin. So here we have our content slide. First we will study about what actually electoral bonds are. We will go with the exact definition of it, and to understand it in a better way we will take an example. Then हम देखेंगे that what are the requirements to buy and encash electoral bonds. And then the main part of the video, that is the contrast between what this scheme was expected to do and what is the reality of it, through the pros and cons of the same. फिर हम दो डोनेटरी कंपनीज के केस स्टडी को पढ़कर इस पूरी रामायण का कंक्लूजन लेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. So the first is, what are electoral bonds? Electoral bonds were a mode of funding for political parties in India from their introduction in 2017 till they were struck down as unconstitutional by the Supreme Court on 15 February 2024. So this is the exact definition which you can get from Wikipedia, but it's a bit difficult to understand and hence we will understand it betterly with an example. So let's assume there is a person A or donor A जिसे political party XYZ को फंड करना है. सो 2017 के पहले, यानी कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम नहीं आई थी, तब डोनर ए डायरेक्टली XYZ की पार्टी ऑफिस में जाकर इन एनी मोड ऑफ पेमेंट XYZ को फंड कर सकता था. बट आफ्टर 2017 ये चीज बैन हो गई. अब डोनर ए डायरेक्टली XYZ की पार्टी ऑफिस में नहीं जा सकता था. नाउ द डोनर ए हैज टू गो टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू परचेस इलेक्टोरल बॉन्ड्स. सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली एक प्रॉमिसरी नोट होते थे जो इस तरह का एक पेपर होता था जहाँ पे उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती थी. अब डोनर ए ने जब अपने डोनेशंस देकर ये पेपर ले लिया है, फिर ये पेपर अपनी प्रेफरेंशियल पार्टी, मतलब यहाँ पर XYZ पार्टी को हैंड ओवर करेगा. फिर XYZ पार्टी उस पेपर को लेकर SBI के ऑफिस में जाएंगी और फिर अपने पैसे एनकैश करवा लेंगी. सो दिस वाज द एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स. Now let's understand the requirements to buy and encash electoral bonds. So the first is restrictions on usage. मतलब कौन सी political parties eligible थी to get political funding through electoral bonds. तो उसके दो criteria थे that the parties have to satisfy. So the first one is that the political parties must have got themselves registered under the RPA, that is the Representation of Publics Act. और अगर ये क्राइटेरिया उन्होंने सेटिस्फाई कर लिया है, then the second one is that the political party must have secured at least 1% of votes in the recent Lok Sabha or State Assembly elections. And the second is denomination limits. So this basically states that electoral bonds can be purchased in multiples of rupees 1000, 10,000, 1 lakh and 1 crore. मतलब आप जाओ SBI के ऑफिस में और बोलो कि I want to purchase electoral bonds worth 5 crore 76 lakh 80,263 rupees. तो ऐसा नहीं हो सकता. So the amount must be in multiples of rupees 1000, 10,000, 1 lakh and 1 crore. Now the third requirement is mode of payment. So electoral bonds can be purchased only by check or through digital platforms and not by cash in order to prevent purchase by black money. तो 2017 के पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम नहीं आई थी, तब डोनर डायरेक्टली XYZ पार्टी के ऑफिस में जाता था और इन एनी मोड ऑफ पेमेंट अपने डोनेशंस दे देता था. एंड मोस्टली डोनर्स क्या करते थे, वो कैश के फॉर्म में ही करते थे. मतलब देयर वाज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो कैश इज ब्लैक मनी ऑफ देम. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ ब्लैक मनी इन द पॉलिटिकल सिस्टम, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम में मोड ऑफ पेमेंट में से ही कैश को हटा दिया गया. नाउ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन बी परचेस्ड ओनली बाय चेक और थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. Now the fourth requirement is that once the electoral bonds are issued, that must be redeemed by the political party within a period of 15 days. और अगर वो ऐसा नहीं करती है, so the amount worth which the electoral bonds are purchased, वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. And the fifth is backing channel. So SBI, State Bank of India, is the only authorized institution which can issue and cancel electoral bonds. Now let's understand the pros, that is the advantages of this scheme. So the first is secrecy. तो 2017 के पहले जब डोनर्स को अपनी प्रेफरेंशियल पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना रहता था, तब उनकी पॉलिटिकल पार्टी को उनके डोनर्स के नाम रिवील करने पड़ते थे अपनी साइट पर.
इसलिए यहाँ पर अगर डोनर ए बहुत पॉपुलर डोनर है जिसके रिलेशंस XYZ पार्टी के साथ और ABC पार्टी के साथ स्ट्रांग है, बट फिर भी डोनर ए का इकोनॉमिकल इंटरेस्ट XYZ पार्टी के साथ ही सेटिस्फाई होते और ABC के साथ नहीं होते, और उसने अपने डोनेशंस XYZ पार्टी को किए जिसके बारे में ABC को पता चल गया, तो फिर ABC डोनर ए को बहुत क्रिटिसाइज करती थी कि तूने उसे क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। और इसी तरह का क्रिटिसिज्म हटाने के लिए ये स्कीम को इंट्रोड्यूस करा गया जिससे सीक्रेसी मेंटेन रहे। नाउ द सेकंड इज रिमूवल ऑफ ब्लैक मनी, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में से काला धन को हटा देना। अब मान लो कोई कंपनी है जो इलीगल है एंड बट वांट्स टू फंड XYZ पॉलिटिकल पार्टी, और अगर वो इलीगल है तो ऑफ कोर्स उसके पास ब्लैक मनी रहेगा, दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ कैश। बट हमें तो पता है कि मोड ऑफ पेमेंट में कैश को हटा दिया गया है, तो वो अपना ब्रीफ केस भरकर SBI बैंक के पास नहीं जा सकती इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदने के लिए, बिकॉज दैट इज नॉट लेजिटिमेट, राइट। और तो इसके दो दूसरे रिक्वायरमेंट्स भी है, दैट इज KYC रिक्वायर्ड। KYC स्टैंड्स फॉर नो योर कस्टमर। अगर कोई कंपनी को अपना KYC बनाना है देन दे मस्ट हैव दैट GST नंबर। अब कोई इलीगल बिजनेस कर रहा है तो उसका ऑफ कोर्स GST नंबर तो होगा नहीं, एंड हेंस दे विल नॉट इवन हैव अ KYC, so they cannot purchase electoral bonds. And second is donations can be made only by check or digitally, मतलब कैश तो यहाँ आ नहीं सकता, like ultimately black money भी आ नहीं सकता, right? Now let's understand the disadvantages of this scheme. So the first is legal illegal paradox. तो ये स्कीम को इनिशिएट करने का मेन रीजन था टू प्रिवेंट द एंट्रेंस ऑफ ब्लैक मनी इन द पॉलिटिकल सिस्टम, बट इस स्कीम का बहुत बड़ा लूप होल था जिसकी वजह से इलीगल मनी को ही ऑन पेपर लीगल बता दिया गया था। तो अब हम इसे समझते हैं कैसे हुआ ये। तो एक कोई कंपनी है जो मेनली इलीगल बिजनेस करती है, बट वो अपने साथ साथ एक लीगल बिजनेस भी रखती है। इन केस कोई अगर वो कंपनी लीगल डिस्प्यूट्स में आ गई तो वो उसका जो दूसरा बिजनेस है दैट इज लीगल बिजनेस, वो उसे फिर भी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर कोई कंपनी है जिसके दो बिजनेस है, दैट इज फर्स्ट इज लीगल ए एंड द सेकंड इज इलीगल बी। अब इलीगल बी के पास उसका मोस्ट ऑफ द मनी इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक मनी होगा, राइट। तो वो लीगल कंपनी ए को अपना ब्लैक मनी देगी, सेइंग टू द गवर्नमेंट दैट इट्स अ लोन ग्रांटेड टू देम। अब वो पैसा लीगल कंपनी ए के पास जाकर तो वाइट मनी में कन्वर्ट हो चुका है, तो फिर और उसे लीगल कंपनी ए को KYC में भी प्रॉब्लम नहीं है, सो दे विल गो टू SBI एंड परचेज इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, एंड देन द सेम प्रोसीजर XYZ SBI के ऑफिस में जाकर उस मनी को एनकैश करवा लेंगे। बट यहाँ पर तो पैसे की हेरा फेरी हुई है, बिकॉज एट द एंड तो पैसा तो इलीगली है ना, बिकॉज वो तो इलीगल बिजनेस बी से आ रहा है, राइट। सो दिस वाज अ वेरी बिग लूप होल ऑफ दिस स्कीम, राइट। एंड द सेकंड इज क्विड प्रो को अरेंजमेंट्स। क्विड प्रो को इज अ लैटिन टर्म दैट ट्रांसलेट्स टू समथिंग फॉर समथिंग और दिस फॉर दैट। मतलब अगर हम इसे हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करें, मतलब एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। मैंने आपको कोई हेल्प की और इन रिटर्न आप मुझे कोई फेवर करोगे। तो इन लीगल एंड एथिकल कॉन्टेक्स्ट मतलब पॉलिटिक्स में देयर इज एन इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। अगर कंपनी ए कोई लीगल डिस्प्यूट में सालों से फंसी हुई है या उसे कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, तो वो एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस हेवीली डोनेट करेंगी XYZ पार्टी को इन फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। और अगर XYZ पार्टी रूलिंग पार्टी बन गई तो फिर फ्यूचर में वो कंपनी ए के साथ मतलब कंपनी ए को बहुत हेल्प करेगी। अगर वो कोई लीगल डिस्प्यूट में हो तो उसे बाहर निकलने में उसकी मदद करेंगी। एंड इफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ग्रांटेड इफ अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी ग्रांटेड, तो वो कंपनी ए को ही देगी बिकॉज इज द डोनर। सो इट्स लाइकली दैट XYZ पार्टी जब रूलिंग पार्टी बन जाएगी तो उसे अपनी डोनर की उंगलियों पर नाचना पड़ेगा, राइट। नाउ द थर्ड इज इन्फ्लुएंस ऑन इंडियाज इलेक्शंस। अब यही चीज मतलब हमारे प्रीवियस एग्जांपल में जैसे कंपनी ए फंड कर रही थी XYZ पार्टी को, उसकी जगह कंट्री ए आ जाए जो बहुत रिच हो। अब कंट्री ए को अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट सेटिस्फाई करने के लिए इंडिया की पार्टी XYZ को वो हेवीली फंड करेंगी, एंड सिंस देयर इज नो लिमिट इन द डोनेशंस टू बी मेड, वो कंट्री ए हेवीली मतलब बहुत अमाउंट पॉलिटिकल पार्टी XYZ को डोनेट करेगी। और अगर वो XYZ पार्टी रूलिंग पार्टी बन गई देन अगेन उसे कंट्री ए की उंगलियों पर नाचना पड़ेगा, राइट। Now let's understand the two case studies which we have. So the first is of BJ Shirke Construction Technology, which is a Pune-based construction company. उन्होंने 2023-24 में 118.5 करोड़ रुपीस वर्थ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे थे, जिसमें से 85 करोड़ was donated to शिवसेना and 30 करोड़ was donated to BJP. अब वही साल में
वही साल में विजय श्री के कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को 20,448 फ्लैट्स बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से मिला था एंड दैट वाज वर्थ ₹4,652 करोड़। अब ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं होगा, दिस इज एन कंप्लीट एग्जांपल ऑफ क्विड प्रो क्वो अरेंजमेंट्स, राइट? एंड द सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज टाइम्स ऑफ इंडिया। Now the second example is of Kotak Bank। तो आपको पता होगा कि उदय कोटक एक लीगल डिस्प्यूट में सिंस अ डेकेड फंसे हुए थे। उनका लीगल डिस्प्यूट ये था कि उदय कोटक की ओनरशिप इन कोटक बैंक एक्सीडेड द लिमिट सेट बाय द आरबीआई। तो जब उनका सेटलमेंट हो रहा था, जब आरबीआई उन्हें रिलीज करने वाले थे, उसके 5 to 10 डेज पहले ही कोटक बैंक की ही एक फर्म दैट इज इन्फिना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने 35 करोड़ वर्थ रुपीज इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीदे थे एंड द एंटायर मनी वाज डोनेटेड टू बीजेपी। तो अगेन दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, राइट? अभी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का डेटा सुप्रीम कोर्ट को मिला है वो यही बताता है। सो दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ क्विड प्रो क्वो अरेंजमेंट्स, राइट? एंड द सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज scroll.in। नाउ व्हाट्स द कंक्लूजन, व्हाट्स द वे अहेड? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है, बैन भी कर दिया है, बट नाउ 2024 इलेक्शंस आर अप्रोचिंग एंड पॉलिटिकल पार्टीज नीड हेवी फंडिंग। तो उन्हें कहाँ से मिलेंगी? But this is a very good opportunity for us to rethink the framework, to rethink the party funding framework, and also since this political funding procedure does not have a constitutional basis, हमें एक legitimate setup बनाना पड़ेगा that is guaranteed by the constitution in order to prevent corruption and quid pro quo arrangements from the system. So this was the video, and अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, so thanks a lot. And if you found it helpful, please like, share and subscribe.